डू यू थिंक कि रेप केसेस में फांसी भी होना चाहिए? रेप केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो हमारे देश में बड़ा लो है. हाउ मेनी केसेस कम इन दिस मतलब डेली बेसिस इन इंडिया? और ऐसे कितने केस सॉल्व होते हैं? लिविंग रिल एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट, दोस काइंड ऑफ स्टैम्प एग्रीमेंट इज वर्क इन लीगल एक्सपेक्ट. कोई भी आम इंसान अपना पैसा जो बैंक में रखवाता है वो इसलिए रखवाता है ताकि पैसा सेफली रखा जा सके. एग्जैक्टली राइट. तो अब अगर किसी भी तरीके से किसी और इंसान ने इलीगली वो पैसा उसमें से निकाल लिया है तो ये माना जाएगा दैट द बैंक हैज फेल्ड इन इट्स ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स. वेलकम टू द ओपन टॉक शो. आज के एपिसोड में हमने बात करा लीगल अवेयरनेस के बारे, और द ओपन टॉक शो में ये फर्स्ट टाइम है जो कि लीगल अवेयरनेस के बारे में बात करें हमने. और आज हमारे साथ था शेखर, और शेखर से हमने काफ़ी सारे बात कर रहे हैं. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस एपिसोड में. ऐसे इन्फॉर्मेटिव एपिसोड और भी आने वाले हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आने वाले एपिसोड भी आप देख पाओ. Hi Shekhar, welcome to the Open Talk Show. Hi Shaheen, thank you so much. And it's nice to have you. Okay, first time in our show, we are having an advocate. Very well. So, first of all, I would like to know about you. Right. Okay, and okay, tell me about you. About मतलब आप क्या करते हो? So at the very outset, thank you for having me here. I am really excited to be here, and very nice to meet you as well, and and to know your thoughts. Right. So about me, so I come from a family where my father was in the government services. So that happens to be a transfer job, right? So we have lived in, my education had been in multiple places, which will include that the first 5 years of my life I was on the mountains in Tihri. It's a place in Uttarakhand. Okay. Right. The Tihri Dam is very famous. Right. So first 5 years I was there. Next 2 years we spent in. Advocate over there? No. My father was in You the were living there. in the government job. I'm talking about my childhood now. Okay. I got Right. it. Yeah. And so my father was posted there. Then I've lived in Noida. I was in Mumbai for 5 years after that. My father was there, my family was there. Right. I also happened to do my 11th and 12th from Ahmedabad. In fact, right. After that I came to Delhi NCR. My law was from here. Okay. And ever since then I have been practicing. All right. Okay. So I'm gonna ask you one question. I recently met a lot of advocates, Okay. especially the newest one. People are really interested in your advocate. Okay, they want to become an advocate. I was Okay. like, why? So I'm gonna ask you the same question to you. Why Right. I know you have passed out for the long time back, I guess, right? Right. So why you are into? I'm sorry, what did you say? You have? You have passed out at that. For a long time, yes. Yeah. Yeah. Okay, that would be maybe I passed out in 2016. Yeah, obviously. Yes. More than 8 years now. 8 years now. Oh, that's Yeah. too long. Yeah. Right? So nowadays people are into advocate. Okay, I met a people Correct. like new students okay, who are into I wanna become an advocate. So I don't know on that time was that you have feel like I wanna be advocate and why? So, whether in that time people had still so much excitement to get into the legal field. Okay. I think it was an era when the feeling was building up. So my batch was from 2011 to 2016. Okay. And I pursued my BLLB honors from Jindal Global Law School, which is OP Jindal Global University. Okay. Right. And so that was the time where this hype about law, I think, was being created in the society. Right. Yeah, only the reason maybe I asked the questions. I felt right now there's a many advocate in the market. Correct. Even every years I have checked that in internet, which is I have found like around 70 to 60. Okay. Every year is graduating from LLP. Okay, so nowadays is every year. Imagine how every year is growing. So there is a lot of advocate will become. What will be the market? See, so again, how I take it as is that again there are pros and cons to everything, right? Pros, if we talk about first, that law is one such field that it is always better to know about. It is always even better for the layman to know about the law.
Okay. right? And so there are so many students of law that I also know personally who otherwise would not want to build an independent career in law. They have their own setups, maybe coming from their family. They would want to join it, right? But for their knowledge and to be able to deal with their existing setup better, they come down to pursue law. Yeah. Right? That is one. And also then there are the legal field, as the Indian economy is expanding, right, which we are all aware of. There are I think every field in law every professional field is also expanding Exactly. in the country, Yeah. which also includes law. Right, So exactly. there are So more can and you more- just specify that? I generally know, but I want to hear from you. Can you specify the new which is mentioned it? Because Well, when correct. I'm coming to that. Yeah. See, there was an era. So if we go a little back in that, in the 90s, 91, if I'm not wrong, globalization happened. Liberalization in the Yes. Indian economy happened. Right? Ever since then a lot of companies started coming into the Indian market. Right. And now law is such a field that every single entity would want to have legal experts associated or empaneled, as we call them. Right. So, and now the trend we see is that more the number of companies that are coming in are only increasing. Right. So not just companies, but any such setup. There are partnership firms that are coming up. So many. Right. So I have a question on this. I want to know one thing. There's a lot of new, before that what I found only crimes related advocate, marriage related. Nowadays it's like there is so many new tools is come. Correct. Especially social media related issues. Correct. You can become an advocate, right? Absolutely. And there's a multiple, I guess, AI related also. There's Of a course. functional things, and also before that is not into too much in the corporate advocate, right? But now it's too much. So there's a multiple, I think, have a Correct. Right? That is Again, I think, see, this also relates back to the same Yeah. concept of liberalization that we talked about. Right. See, what happened after that particular stage was that since a lot of corporate houses came into India, छोटे बड़े सबने आना शुरू किया, इंडिया में ही लोगों ने अपना भी करना शुरू किया बाहर से एसोसिएशंस बना के, राइट? तो क्या हुआ कि ऐसी मल्टीपल फील्ड्स जिनका पहले भी स्कोप रहा होगा बट वो और बढ़ गया. फॉर एग्जांपल से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट, जो कॉपीराइट कराया जाता है, ट्रेडमार्क कराया जाता है या पेटेंट कराई जाती हैं टेक्नोलॉजीज, वो 90s से पहले भी इंडिया में. लेकिन जब जैसे जैसे कंपनीज और आनी शुरू हुई उसका स्कोप उतना बढ़ता चला गया. दिस इज वन थिंग जो कि प्री एग्जिस्टिंग था और आगे आगे समय के साथ वो एक्सपैंड हुआ. सेकेंड आर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ जो आपने मेंशन किए व्हिच हैव कम इन विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? जो हमारे जितने डेटा प्राइवेसी लॉज हैं, राइट, अब जो ऑनलाइन डेटा सब हो गया इंटरनेट आने के बाद से, तो उसकी जरूरत पड़ी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है हमारे देश में, right? So all these new fields of law have also definitely emerged, right, with the advent of technology. Got it. So let's talk about the people who just want to become a LLB graduate. Okay, so if you see in after 5 years, because I personally nowadays I see that Gen Zs are in 24 now. Okay, especially जिनकी जन्म हुआ 2000 में, so they are 20 now, right? So they become after 2-3 years they become looking for a job and all, and everywhere are particular talk about the LLBs. Okay, हर साल 60 से 70 हज़ार एडवोकेट ग्रेजुएट होते हैं. ओके, एंड देयर इन द मार्केट टू. सो आने वाले 5 साल में तो इनकी मार्केट के हिसाब से इनके पास ऐसा क्या स्कोप होगा कि उनका फ्यूचर और बेहतर हो सकता है? व्हाट डू यू सी? यार एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब इसमें कैरियर का कितना है? देखो क्या है, हाँ, उसी में क्या है शाहीन भाई कि ना लॉ हैज डिफरेंट फेसेट्स, आई वुड से, राइट? तो लॉ के अंदर भी अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें से एक हो गया लिटिगेशन, जिसमें से एक हो गया लिटिगेशन, एडवोकेसी, कोर्ट में जाके जो हम केसेस लड़ते हैं, राइट, लाइक व्हाट आई डू, राइट? उसी के अगेंस्ट में एक फील्ड होती है लॉ की विच इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल लॉ. देयर आर ट्रांजैक्शनल लॉ फॉर्म्स इन द कंट्री जो कि ग्राउंड पे आके केस नहीं लड़ेंगी, लेकिन कंपनीज
कि जितने ट्रांजैक्शन कोई होने हैं उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, मर्ज करना है, कुछ करना है, सो दीज फर्म्स विल फैसिलिटेट दोज ट्रांजैक्शंस, दोज लीगल ट्रांजैक्शंस। Okay, I got राइट, तो it, ये yeah. ट्रांजैक्शनल लॉ एक फील्ड हो गई। फिर एक चीज हो जाती है कि एवरी कंपनी दैट यू टॉक अबाउट वो, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट वी टॉक अबाउट विल हैव देयर लॉ डिपार्टमेंट, देयर लीगल टीम, Right, which are called in-house legal counsels. Right. So that is another place where You can find your career. law graduates can definitely. Okay. And similarly, there are so many there are organizations, there are government organizations, there are say NHRC, National Human Rights Commission, or the State Human Rights Commission. Okay, interesting. Law graduates. So basically, I found there is so many scopers there, right? Yes, for the new one. All right. So let's come about the. Okay, you started as a law last 8 years. You told me, right? Yeah. So I want to know the first case you have. Let's talk about your first case, which is you found like very interesting and are you excited? And जो आपने आपको लाइफ में पहले सॉल्व करके आपको बहुत खुशी हुई कि हाँ, I have done something great. So tell me about that. So it was a case of abetment of suicide, I will say. Right. Okay. And this was a case of two doctors, in fact, in Bangalore. Okay. Right. Since, however, the person who was alleged happened to be. Is it both are suicided or only one? No. So it was a case where these doctors, they were pursuing their post graduation. Okay. In fact, right, and they eventually got. I mean, they became friends. They probably even started dating, right? And Okay. then the couple first thought of marriage, right? So both of them discussed it with their respective parents. Boy's parents agreed, Okay. but then the girl's parents did not agree because if you're aware, in the medical field there is this perception which branch do you hold, whether Okay. it's a higher branch or it's a lower branch, Okay. right? So something related to that. The girl's family did not agree, and the girl kept a very surprising condition before the boy and his family, that so the boy's parents said कि बेटा आपको करनी है तो आप बताओ, हम करवा देते हैं, फिर अगर है ना सब From the boy's side. हाँ, the boy's parents asked the girl कि यार अगर आपको करनी है तो she was like कि नहीं मुझे नहीं करनी, लेकिन जब तक मैं नहीं करूँगी तब तक ये भी नहीं करेगा। ये कैसी बात हो गई? है ना, तो बस वहाँ पे वो थोड़ा ईगो वाली बात थी, तो वो ही बात आई कि ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है, बिल्कुल आपको करनी है तो हम आपकी करवा सकते हैं, बट अदरवाइज ये कोई लॉजिकल नहीं है, राइट। सो बस वो फैमिली ने फिर लड़के की कहीं और पे फिक्स की शादी, उनका रोका हुआ कुछ, ठीक है, एंड उसके हफ्ते भर बाद न्यूज़ आ गई कि दैट गर्ल हैड सुसाइडेड, राइट, इन हर हॉस्टल रूम, एंड शी लेफ्ट अ 4-page long suicide note. Or naming the boy, naming the person also. Naming the boy. Okay. Right, and so I will not say a lot about that because that matter is still actually pending before some or the other court. Okay. Right. So it is not concluded. I will not get a lot into the merits of that. तो बट हाँ, उसमें to answer your question, हमने उसमें फिर ये क्योंकि बैंगलोर का केस था तो हमें उनकी कुछ एंटिसिपेटरी बेल वहाँ पे फाइल करनी पड़ी बैंगलोर के सेशंस कोर्ट में, right, and for that around 1.5 months I think I was in Bangalore, and so how we could just make that case in our favor अच्छे से, and thankfully the court found merit in our case, granted us the relief we were seeking of anticipatory bail. Very interesting. This was amongst the first. Okay, you also get excited about that case also. Okay, of course, yeah. You went to 8 years into in the LLB, legal profession, professions. So just tell me one thing, how many cases come in this मतलब daily basis in India, और ऐसे कितने केस सॉल्व होते हैं, मतलब एवरेज आपके एक आइडिया? अब अगर आपसे बिल्कुल FIRs कितनी रजिस्टर होती हैं, हाँ, एक हाँ, just I want to view, है ना, अगर ऐसे आप बात करो तो see, I understand, I will not quote any specific figure or data, right? Data तो exactly नहीं होता, yeah. But I understand that the rate of conviction, say, है ना, is low in the country, right? या ये भी थोड़ा offense specific भी इसमें हो जाता है, okay, है ना। हम अगर general की बात करें या जैसे होता है कि जैसे मतलब often this is a matter of debate कि वो जो रेप केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो हमारे देश में बड़ा लो है,
अच्छा राइट तो अब उसमें डिबेट की बात ये आती है कि एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं दिस इज अ प्रॉब्लम देन विद द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, राइट, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि भाई वो अगर कन्विक्ट नहीं हो रहा है, कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है, तो इसका मतलब है या तो वो झूठा केस फाइल किया गया था, या कुछ केसेस चलो झूठे नहीं भी हो, सबूत के अभाव में फॉर लैक ऑफ एविडेंस भी अगर कोर्ट अक्विट कर देती है, कन्विक्ट नहीं करती, बट फिर भी एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं जो फॉल्स एलिगेशन आते हैं, फॉल्स एलिगेशन एब्सोल्युटली, स्पेशली जो वुमेन रिलेटेड लॉज हैं उसमें बहुत केसेस आजकल ऐसे आते हैं जो फॉल्स एलिगेशन बेस्ड। ओके आई गॉट इट। ओके सो एक मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ पढ़ा था जो आई फाउंड लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक। ओके मैंने एक देखा था न्यूज़ में एक लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर एक एग्रीमेंट। सो देयर इज अ गाय हु हैज़ एग्रीमेंट यू नो मेड एग्रीमेंट जिसमें ये मेंशन करा हुआ था कि वो एग्रीमेंट में ये मेंशन था कि जो लड़की है उसके साथ रहेगा तो उसके फैमिली के अलावा रिलेटिव कान बी इन्वॉल्व ओके इन देयर लाइफ एंड also if any pregnancy happen in this case matlab it's sound like because it's come in the newspaper okay only the reason because it sound interesting so so yeah if in case having pregnancy during period of the living relationship the girl can be blamed to the guy okay and after 1 month it could be anything happen it's up to both of them okay if anything if the guy also mentioned that if any mentally have issue with the girl torture with the guy so that could be functionally will be case and legal actions against the girl so those kind of things mentioned in the agreement. I'm surprised that is that the agreement those kind of Islam agreement it's work in legal aspect. See again so when we talk about say a Hindu marriage, right? A Hindu marriage is not a contract. Okay. Right. Muslim marriages are contract. Okay. Right. But since the case that you mentioned, this is just a case of live-in relation. Right. Right. And not post-marriage scenario. Exactly. This is before the marriage. Right. Right. So I think एक प्रिंसिपल लेवल पे हम देखने जाए ना तो अब आप ये सोचो कि अगर उस लड़के ने राइट या उसकी फैमिली ने वो अग्रीमेंट क्यों बनाया होगा नहीं आई थिंक दैट इज जस्ट एन अटेम्प्ट to safeguard himself from any such allegation arising at a later stage. That's true, I guess. Yeah. This will be the sole purpose of that agreement. Right. So what will be the other question is like in case the girl have allegation on something like she did something this has happened to me and with this guy in a year within a year after 6 months 7 months okay something happened misunderstanding with both of them and they have badly fight and it's come in the legal on court so my question is that in those kind of agreement क्या लीगली को एक्सेप्ट करते कि ये तो आपके उसमें था तो आप उसके बाद कैसे कर रहे हो या वो डिफरेंट लेवल में चले जाता है? नहीं अब देखो यहाँ पे भी क्या बात आती है सपोज ऐसे हम सिनारियोज देखते हैं अभी पिछले ही कुछ समय में पहले ही एक हाई कोर्ट का भी मैं जजमेंट पढ़ रहा था जिसमें हाई कोर्ट ने यही बात कही कि सार रिलेशन और रिलेशनशिप्स बीइंग टर्न्ड सार राइट does not does not automatically conclude to be an offense. Okay. Right. Especially in cases where there have been consensual relationship. There has been a history of consensual relationship. So people have stayed together. Several cases came, such where people stayed for a substantial time together. It did not work out. And then they wanted to part ways. Right. They could have done it peacefully. Unfortunately, it did not happen peacefully. Right. The girl alleged something on the boy. Right. So when it is taken up for criminal trial, okay, right, when action is initiated on a complaint, and say the girl files a rape complaint, right, saying that yes we were living together, whatever, and then this person forced me, right, to have physical relations against my will.
So that is considered as a like no means no. Up when of course that FIR will be registered, investigation will be conducted, that matter will go to the court, right? Okay. A trial will be conducted, but when that trial is conducted, now that agreement will come into play. Okay, I got it. To at least establish that there was a previous relation, there was such and such previous agreement, Yeah. right? Yeah, I got it. And then how the argument is built is a different thing, Yeah. right? Okay. But that agreement will definitely come into play, so that the court also understands that yes, there has been a previous history, and there could be chances of false allegation, or if the evidence supports, it could be a genuine case. I mean, I feel really sad that such empowered women laws, right, were implemented for actual benefit of people who are suffering. Okay. Right? Do you think that the men, the laws basis on the gender, especially, okay, so ऐसा क्यों कि फीमेल के साथ ज़्यादा फेवर में आते बहुत सारे कैटेगरी में और मेल के साथ क्यों कम है? भाई क्योंकि ये हम देखने जाए ना तो देखो हिस्टोरिकली जो हमारी सोसाइटी रही है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, राइट? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या है, हिंदुस्तान में अधिकतर देश में आप देखोगे तो जो वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, मेल मेंबर है, राइट? ऐसी भी कुछ जगह हैं लेकिन हिंदुस्तान में ही, राइट, जहाँ पे द फैमिली इज लेड बाय द फीमेल. Okay. You'll be very interested to know this, right? और शायद if I'm not wrong, ऐसी एक जगह आसाम में भी है, Okay. right? जहाँ पे कल्चर ही ये है कि head of the family is the female. I know that. That is, I guess, the Manipur side. Right. नॉर्थ ईस्ट में. नॉर्थ ईस्ट में, I guess. Yeah. तो बट अदरवाइज अगर देखने जाएं तो हिस्टोरिकली द सोसाइटी हैज बीन पेट्रियार्कल, राइट? उसी वजह से क्या है, नहीं, the point is why only the one side is more considered in law. That's what I'm coming at, right? That's what I'm. So law में तो सब बराबर होना चाहिए. तो क्या है कि क्योंकि हिस्टोरिकली पेट्रियार्कल रही है, मेल डोमिनेटेड रही है, Okay. राइट? तो इवेंचुअली ये समझ में आया विद द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी कि भाई जो डोमिनेटेड सेगमेंट है विच इज ऑफ द फीमेल्स, दे नीड टू बी एम्पावर्ड, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड मोर बाय द लॉ. Okay, Right? by the law. By the law. Interesting. Hence, there are so many laws for women protection. This is a different debate altogether, whether the real victims are actually able to get benefit or not, or how many false complaints are coming up. This is a different debate. But this is actually for their protection of the segment of the females who have been long dominated. So here the male one also sometime accused from the female side. Of course. I think, see, again, this also, that when we talk about evolution of the society at a consciousness level, right? I think उसकी अपनी एक टाइमलाइन होती है, अपनी एक स्पीड होती है. इंडिया अब क्या अभी 75 years या 77 or 78 years of democracy हुआ है, तो we have reached at a certain stage of evolution, right? We are bound to keep evolving, right? So the law will also keep evolving. Yeah, I got right? it. So I think very soon we will see gender neutral laws as Really? well. Oh, Right. okay. It can be happen. Yes. Because the generation, new generation is come in a different level of the thought process and representing, and the cases is come differently. Okay, yeah, it could be happen. Okay, I agree with it. Okay, and so I want to know. Okay, you are advocate and you're doing you're actioning cases as well. So what kind of cases you are doing mostly right now? So see, Delhi is a very interesting place in terms of litigation. Right. Because क्या है, दिल्ली में ही अपने 7-8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जो आप कवर कर सकते हो. राइट. वहीं पे हाई कोर्ट है, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट है, राइट, और वहीं पे और तमाम ट्रिब्यूनल्स भी हैं. Right. Say we have the National Consumer Commission, we have the National Green Tribunal, we have the Administrative Tribunal. Right. So many different. Right. So India gives you this liberty. I mean, I'm sorry. Delhi litigation gives you this liberty to be able to practice in multiple
before multiple forums Yeah. and try and build your advocacy into multiple fields. I got it. Yeah. Right. So thankfully, I have had the opportunity so far of representing clients before the Company Law Tribunal, the National Company Law Tribunal. I am before the National Consumer Dispute Redressal Commission, or the National Consumer Commission, Okay. which we say in nice. short, which is in Delhi only. Okay. Desh ka iklauta. Right. I've been before CAT, the Central Administrative Tribunal. Okay. Of course, I've been before the High Court, before the Honorable Supreme Court, the trial courts. So yeah, so far it's been fun. I have explored civil law, civil matters. I've done criminal matters. Okay. Right. So course, all of the consumer- expect you work. Huh? All of the expect you work. Kind of. And so consumer matters I've done, company law litigation I am doing. So yeah, it's a diverse. Okay, interesting. So एक मुझे ऐसे केस बताओ जो आपने करा है, जैसे कि एक सस्पेंड था, बाद में आपको लगा कुछ और है. ऐसा कोई केस आपको, या आपने कहीं बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको मिला, या किसी के साथ हुआ आपकी सर्कल में, या Actually ना मैं when you asked me this, I am reminded of one matter. But I will like जैसे फिल्मों में सस्पेंड होता ना. Right, but I will not talk about it since it is pending before the court. Okay. Right, and I am. But I'm not asking this. Just view the like a film story. उसके लिए चलो, I'll tell you another case. Yeah. Right, which I did not deal with my own self. This was a case that I came to know during one of my internships when I was in the law school. Right, तो उसमें हुआ क्या कि so this lady, she was learning to drive. Okay. Right, उन दिनों में. And one fine morning, she thinks that भाई थोड़ी चलानी आ गई है, अब मैं अकेले भी ले जा सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ, तो वो गाड़ी ले जाती है. ठीक है. राइट. अब सीन ऐसा है कि दोनों तरफ ओपन ग्राउंड्स हैं और बीच में वो सड़क है. Now this lady is driving her car. Right. अब वो कुछ ऐसा था कि वो इधर से आई और टर्न लेके फिर वो इधर पे आई. Okay. ठीक है. और यहाँ पे आगे कोई एक बंदा जा रहा था. And then something happened, right? And then मतलब accident happened. Okay. Right. So and he probably he either passed away or he suffered some very major injuries in that. राइट. तो अब उसका जब ट्रायल चला कोर्ट में, तो क्योंकि बिल्कुल बहुत सुबह के समय की बात थी, 5:30 पौने 6 करीब की, तो देयर वाज जस्ट वन आई विटनेस टू दिस एंटायर इंसिडेंट. ओके. राइट. और जिसने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट ये दिया था कि जी मैंने देखा ये मैडम इस गाड़ी में आई और इस गाड़ी ने वो बंदा चल रहा था उसको उड़ा दिया. बस इतना. ठीक है. हाँ, उसका the gist of his statement was this, that she came and she banged into that person who was walking on the road. ठीक है. तो this of course made her criminally liable. Right. तो जो लेडी के काउंसिल थे, फिर उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया. अब जब वो जो विटनेस था, ही वाज इन द विटनेस बॉक्स, उसको क्रॉस एग्जामिन किया. तो इन्होंने पूछा उससे कि भाई पहले थोड़े बहुत उसके बैकग्राउंड का, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितनी पढ़ाई की है, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं. ऑफ कोर्स. और वो उस सवेरे तुम उतने सवेरे वहाँ कर क्या रहे थे. राइट. तो करके उसने जो बताया. तो फिर उन्होंने पूछा उससे कि तो आप थोड़ा सा दोबारा एक बार बता सकते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली. राइट. तो ही सेड कि जी मैं वहाँ पे अपना कुछ काम कर रहा था और मैंने देखा वो जो गाड़ी जब इधर से आ रही थी, वो समवेयर हियर एंड दिस इज द रोड. सो ही सेज कि वो यहाँ पे कुछ काम कर रहा था और मैंने देखा तो वो गाड़ी उधर से आ रही थी और फिर मैं अपना कुछ काम करने लगा. थोड़ी देर में फिर आवाज़ आई तो उसने गाड़ी ने उसको उड़ा दिया था, ऐसे करके. ठीक है. सो द काउंसिल आस्क्ड हिम दिस कि जी आपने गाड़ी को उस रोड पे टर्न लेते हुए देखा? उसने कहा हाँ जी देखा, है ना. सो काउंसिल सेड कि कौन सी गाड़ी थी, वो पूछा उन्होंने. उसने बताया कौन सी गाड़ी थी. देन द काउंसिल आस्क्ड हिम कि तो ये एक जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि भाई कोई बहुत कोई जैगवार या पॉश है तो आप उसे थ्रू आउट शायद कोई इंसान फॉलो करे. राइट.
अदरवाइज आप देख के आप अपना शायद वापस दोबारा काम करने लगोगे। तो भाई क्या आपने वो देखने के बाद उसे पूरा फॉलो किया था? उसने कहा नहीं जी मैंने देखा और मैं फिर अपना काम करने लगा। उन्होंने कहा फिर आपने कब देखा? वो दोबारा उठ के कहा जी मैं अपना काम कर रहा था, इतने में आवाज़ आई, जैसे ही मैंने पलट के देखा तो वो तब तक उड़ा दिया था। तो ही सेड इसका मतलब है आपने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, हाँ. आपने एक्सीडेंट के इमीडिएट बाद देखा, राइट? एंड देन फिर वो केस थोड़ा सा इस तरीके से हो गया था कि देन यू नेवर नो वेदर इन्होंने उसको उड़ाया या ये गाड़ी आते हुए देख के वो गाड़ी के सामने कूद गया। अच्छा, ओके, राइट, एंड द लेडी वाज एक्विटेड फाइनली। लेडी एग्रीड कि हाँ कैसे हुआ था, मतलब लेडी मान गई? नहीं, लेडी फिर मतलब क्योंकि क्या होता है जब आप ट्रायल बिल्ड करते हो तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आप कवर करते हो। तो उस एक विटनेस से तो ये बात हो गई कि अब भाई इस विटनेस ने मतलब एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देखा। ओके, आई गॉट इट। एक्सीडेंट के इमीडिएट बाद भले ही देखा हो। फिर हुआ क्या था? सच में वो एक्सीडेंट हुआ था? अब देखो सच तो वो होता है ना जो कोर्ट हमें बताएगी। ओके, पॉइंट। सच तो वो होता है ना जो फाइनली कोर्ट ने जब एविडेंस ले लिया, आप और हम तो थे नहीं वहां पे, राइट? कोर्ट के सामने एविडेंस लीड हुआ, कोर्ट ने अपने फिर जजमेंट में बताया वो है। व्हाट वाज द फाइनल जजमेंट उस केस? फाइनल वर्डिक्ट क्लोज है ना? हैं? केस तो अब क्लोज है, ये तो काफी साल पहले का हो गया। हाँ, तो राइट, उसमें वर्डिक्ट ये आया था फाइनली कि भाई क्योंकि किसी ने आई विटनेस किसी ने एग्जैक्ट उड़ाते हुए तो देखा नहीं था, और साथ में कुछ रिकॉर्ड पे ये भी बात आई कि ये जो इसमें था बंदा जिसको चोट लगी है, जिसकी डेथ हुई, उसके फैमिली के एंड पे भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। ही वाज आल्सो सुसाइडल फॉर सम टाइम, मतलब दैट इज लाइक अ प्लैनेट में भी। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि भाई उसने सुसाइड करने के अटेम्प्ट से ही जैसे ही उसने गाड़ी आते हुए देखा वो गाड़ी के सामने खुद कूद गया। ओके, गॉट इट। एंड इट कुड नॉट बी कंक्लूसिवली प्रूव्ड डेफिनेटली कि भाई इन्होंने ही अपनी नेग्लिजेंस से उस बंदे को मारा है, एंड सो शी वाज एक्विटेड। ओके, सो डू यू आल्सो हैंडल लाइक डिवोर्स केसेस? डिवोर्स केसेस, यस। ओके, सो इंडिया में काफी सारे अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत हो रहे हैं। सो व्हाट डू यू फाइंड द रीजन? मतलब क्या रीजन की वजह से ज्यादातर डिवोर्स होता है? यार आई एक्चुअली थिंक दैट सी डिवोर्स केसेस में बिल्कुल मतलब आई हैव बाय द ऑलमाइटीज ब्लेसिंग्स आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डील विद अ लॉट ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। तो वो डिवोर्स की बजाय लेट्स कॉल देम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, राइट? तो उस सब से जो अगर बिल्कुल 2 लाइन में उसका सबक मुझे कहना हो ना, तो मुझे लगता है सिर्फ एक वो 3 अक्षरों का एक शब्द होता है जिसकी वजह से अराइज होता है, वो होता है ईगो। या दोनों ही पक्ष यदि अपना ईगो साइड रख देना तो नहीं होगा। अच्छा, बस आज के टाइम पे अब क्या हो रहा है, क्योंकि एवरीबडी इज लिटरेट, लड़का भी पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, दोनों को ही है कि भाई हमने नहीं सहना, मतलब है ना, मतलब व्हेन 2 people are living together nobody is perfect, राइट? कभी ना कभी कितना भी मैं परफेक्ट बनने की कोशिश करूं, कभी ना कभी तो मुझसे कोई गलती होगी। बिल्कुल। अब इफ माय पार्टनर हैज द पेशेंस फॉर मी तो वो बात चल जाएगी, राइट? लेकिन अगर उसमें ईगो होगा, राइट, कि अरे तुमने ऐसे कैसे कर दिया, और या फिर वो हमें दबाएगी जी आप सॉरी बोलो, तो फिर वहां पे वो जैसे वो ईगो क्लैश आता है ना, वहां पे वो बात अगली होनी शुरू हो जाती है। आई गॉट इट, या आई अंडरस्टैंड। सो इसको इस मतलब कोई भी लॉ रिलेशन को यहाँ तक ना पहुँचने के लिए what would be your advice as a lawyer? Yeah. See, I think marriage counselors can give you a better marriage advice counselor for that. do different work. जब आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, what do you see in the maybe मतलब क्योंकि क्या होता है, जैसे कोर्ट में भी मीडिएशन प्रोसेस होता है या काउंसलिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें अभी काउंसिल्स वी ऑफन पार्टिसिपेट एंड वी रिप्रेजेंट द क्लाइंट एंड वी आल्सो ट्राई कि कैसे कोर्ट स्ट्रक्चर का स्पेशली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, राइट, एक सिंगल थॉट प्रोसेस विच इज़ वेरी क्लियर कि पहला अटेम्प्ट ये किया जाए कि घर बचा रहे। इंटरेस्टिंग। कोर्ट का या कानून का हिंदुस्तान में इंटेंट ये नहीं है कि जितने हो सके उतने तोड़े जाएं, उनका इंटेंट ये है कि कोशिश कर ली जाए यदि बच सके। बिल्कुल ही अगर ऐसा हो गया कि नहीं बच सकती तो फिर उनको आगे सेपरेट किया जाए और आगे जो भी लीगल प्रोसेस है। Okay,
तो आई थिंक हाँ, मुझसे यदि कोई मुझसे आप पूछेंगे तो वही जो मैंने बात कही, आई थिंक इफ बोथ पीपल कैन गेट अ लिटिल मोर पेशेंट टुवर्ड्स ईच अदर एंड जस्ट erase this word ego, at least in their interpersonal relations and conduct, right? I think that only then it can work. That it can be. Oh, Yeah. interesting. Yeah, right. I agree. And Because आज के so many matters we have seen, वैसे भी जो जिसमें कपल दोनों ही लोग वर्किंग हो, उनके भी हमने मैटर्स देखे. उस लाइफ स्टाइल का अपना अलग चैलेंज होता है, राइट? आई हैव I remember giving legal advice to have someone. you find like fake marriage and divorce? Have Fake marriage and divorce because of the properties and all. ऐसा भी होता है? fake marriage and divorce for the purpose of properties. मैंने ऐसे दो चार केस सुना था. हाँ, if I've understood your question correctly, right? तो हाँ, ऐसे जैसे अभी recently मैंने मतलब शादी करते हैं because property के लिए. हाँ, है ना, recently अभी किसी ने मेरे को approach ये किया मैंने एक भी matter सुना के था, लिए, जिसमें क्या था, उनकी बस शादी हुई नहीं होने से पहले उन्हें सच्चाई पता लग गई तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया. बट अदरवाइज उन्हें पता यही चला कि भाई ये जो लड़की और इसकी फैमिली है, इनका धंधा ही ये है कि किसी बिचौलिए, किसी मीडिएटर के थ्रू शादी के लिए फैमिली पकड़े, लड़का पकड़े, फैमिली पकड़े, राइट? उनसे कुछ एंगेजमेंट कर लें, कुछ कर ले, अपना जो भी ज्वेलरी है, सामान वामान है, वो कुछ ले लाके, राइट? शादी भी अगर हो जाए तो फिर तो प्रॉपर्टी भी आ जाएगी लपेट में. हाँ, ये सब उसके साथ आप उसके बाद आप थोड़ा हंगामा क्रिएट कर दो, राइट? कि भाई नहीं रहना साथ में. फिर आप डिवोर्स का कर लो जो भी, तो प्रॉपर्टी भी लोग कर लेते हैं. बट अगेन क्या होता है ना कि लॉ में ना, इस केस में लॉ का मतलब लॉ कैसे वर्क करता है यार? एक्चुअली क्या है, देखो लॉ भी क्या है ना, वो वाली जो बात है कि वो कानून की वो जो देवी होती है उनकी आंखों पे पट्टी हो सकती है, जज की आंखों पे नहीं होती है, राइट? जज सब देखते हैं, उन्हें सब समझ में आ रहा होता है, राइट? तो कई बार ये जरूर होता है कि कोई चीज नई मिसयूज होनी शुरू होती है, तो इंस्टेंट उस पे कोर्ट या लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट को फिर भी थोड़ा लॉ के हिसाब से ही देख के करना पड़ता है. बट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है ना, हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, जब वो देखते हैं अच्छा लॉ वैसे ये ऐसे आया था, फेवर करने के लिए आया था, लेकिन उसको ऐसे मिसयूज किया जा रहा है, तो उस पे एक स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लेते हैं, उस पे एक अगेंस्ट की इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ले लेती है, राइट? Because at the end of the day, see, what is important is that justice needs to be done. And I think इंडिया में ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि जस्टिस जो होता है एक्चुअल वो सही पे होता है, मतलब फ्रॉम द लॉ एस्पेक्ट पे वो सही होता है. हाँ, मतलब again as I said कि देखो हकीकत में कोई इंसिडेंट में क्या हुआ, वो जब तक आपने और मैंने विटनेस नहीं किया, राइट, टिल द टाइम उसका फाइनल फिर है ना, तो फिर मेरा आपका या मेरी नॉलेज फर्स्ट हैंड तो है नहीं, राइट? अब या तो मुझे जो नॉलेज आएगी वो मीडिया से आ गई या कोई सोशल मीडिया से आ गई, राइट, है ना? तो बट उसमें अब मोस्ट ऑथेंटिक क्या होता है सोसाइटी में, मोस्ट ऑथेंटिक क्या माना जाता है? वो नहीं माना जाता कि जो न्यूज चैनल ने बताया या जो मीम सोशल मीडिया पे चल रहा है. ऑथेंटिक वो माना जाता है जो कोर्ट ने अपने एविडेंसेस वगैरह सारे लेके उनको उनका एनालिसिस करके पूरी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस का, फिर कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है. ओके, अब समझ, ये है जो फाइनली मैटर करता है. आई गॉट इट. ओके, and do you have any cases recently you have done which is so much interesting and effect to the मतलब complete legal aspect? There are so many. Okay. Just it was day before yesterday, I was before the NCDRC, which is the National Consumer Commission, and I was in appeal against an order of the Punjab State Consumer Commission. Right. So उनका कुछ मतलब ऐसा एक ट्रेंड पिछले कुछ समय से चल रहा था कि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा एक्चुअली. That's okay. Just give about the not the detail. I do understand there is. जैसे क्या होता है कि जो बिल्डर
हम देखते हैं जो जैसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, राइट, बड़े बड़े बिल्डर्स जो बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उसमें एज अ बायर जब भी आप कोई वो बुक करोगे तो आप एक अग्रीमेंट आपका बिल्डर के साथ होगा, ठीक है, आप फाइनेंस कराओगे तो होम लोन लोगे, तो आप एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट एंटर हो जाता है जिसमें बायर होता है, बिल्डर होता है, फाइनेंसर होता है, सिग्नेटरी टू दैट वेरी सेम अग्रीमेंट, राइट, जिसके तहत आप बैंक से होम लोन लेते हो और वो लोन पैसा सीधे डिसबर्स करता है बिल्डर को, ठीक है। तो अब इसमें कभी डिस्प्यूट जो भी अराइज हो जाता है, तो अब इस वाले में क्या हुआ, जैसे इसमें कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ हमारे क्लाइंट का, तो उन्होंने वहाँ स्टेट कमिशन में अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी, बिल्डर और फाइनेंसर दोनों के अगेंस्ट, राइट। अब ये जो बिल्डर था वो है इस केस में सुपरटेक, ठीक है, सुपरटेक आपने सुना हो यदि तो, है ना, दिल्ली एनसीआर का कंपनी है, that's fine, that's a fact, actually, no, that's a fact, so there's no problem with that, right. अब Supertech but is in insolvency, okay, उसकी NCLT में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो एक और एस्पेक्ट होता है कि जैसे ही कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ जाती है तो फिर एक मोरेटोरियम एप्लीकेबल हो जाता है कि उसके अगेंस्ट उस समय पे कोई भी प्रोसीडिंग फाइल या इनिशिएट नहीं की जा सकती जब तक वो मोरेटोरियम चल रहा है, राइट। तो जैसे ये सुपरटेक मोरेटोरियम में चली गई, अब ये देख के लोअर कमीशन, स्टेट कमीशन ने उस पूरी ही कंप्लेंट को बिल्डर और फाइनेंसर जो दोनों के अगेंस्ट थी उसको एडजर्न सिने डाई कर दिया, जिसका एडजर्न सिने डाई का मतलब होता है कि अब इसमें अभी कोई डेट नहीं लगाई जाएगी, आपका वहां से मोरेटोरियम खत्म हो जाए तब आप आके अपना एक एप्लीकेशन लगा देना रेस्टोरेशन की, फिर हम आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट आगे परस्यू करेंगे। ये व्हाट अबाउट आपके क्लाइंट का? राइट, हमारे क्लाइंट के साथ भी यही हुआ था। अच्छा। अब इसमें और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पिछले कुछ समय से बनी जा रही है और देश भर में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन ऐसे केसेस आते हैं, हाँ, कि जिसमें कि मल्टीपल पार्टीज के अगेंस्ट केस है, एक के अगेंस्ट भी मोरेटोरियम हो गया तो कमीशन कहता था कि भाई अभी आप इसको एडजर्न करो सिनेडाई, बाद में देखेंगे, है ना, जब वो मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा। अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बिल्डर के अगेंस्ट तो मोरेटोरियम था, वो बात ठीक है, लेकिन फाइनेंस मोरेटोरियम इज दैट जैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है, अच्छा, किसी कंपनी के अगेंस्ट, मतलब NCLT कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देती है, ओके, राइट, तो एक सेक्शन 14 है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है हिंदुस्तान का, अच्छा, राइट, जिसके तहत मोरेटोरियम अप्लाई हो जाता है। मोरेटोरियम इज अ स्टे बेसिकली, अच्छा, उसका आगे नहीं बढ़ सकते, इज अ स्टे कि भाई ये कंपनी अब इंसॉल्वेंसी में है, इस कंपनी के अगेंस्ट जब तक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलेगी तब तक कोई भी नया केस फाइल नहीं किया जा सकता, अच्छा, और अभी जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनको भी परस्यू नहीं किया जा सकता। फिर कंपनी चलेगा, अभी वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जब तक चल रही है, वो एक बार खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही इनको दोबारा रीओपन किया जाएगा। और ये कब होगा? अब ये ही तो बात है कि जिसमें इस वाले केस में मोरेटोरियम लगा था सुपरटेक के अगेंस्ट 2022 में, ठीक है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली शायद मार्च या मई 22 का ऑर्डर है, राइट, NCLT का, जिससे मोरेटोरियम लगा था। तो अब 2024 में तो हम ऑलरेडी हैं, राइट, अब तक तो वो चल ही रहा है, तो अब आगे कब तक जाए यू नेवर नो, राइट। तो अब इसमें कस्टमर्स की ग्रीवेंस ये होती है कि भाई बिल्डर के अगेंस्ट तो चलो मोरेटोरियम है, एज पर लॉ प्रोसीड नहीं कर सकते, बात समझने वाली है, लेकिन फिर फाइनेंसर उसका बेनिफिट क्यों ले? मेरा जो केस फाइनेंसर के अगेंस्ट है उस पे तो मैं प्रोसीड कर सकता हूँ एटलीस्ट, मुझे अलाउड होना चाहिए, राइट। तो अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशंस थे, अब तक वो थोड़ा सा उनका ये रूटीन प्रैक्टिस ये हो गई थी कि एक पार्टी के अगेंस्ट मोरेटोरियम होते ही वो पूरी कंप्लेंट को उस समय के लिए स्टे कर देते थे, ओके, और व्हाट अबाउट द फाइनेंस वाला? बस वो उसके भी अगेंस्ट स्टे हो जाता था फिर, अच्छा, राइट। अब इससे दिक्कत और क्या होती थी कि एक तरफ मैं फाइनेंसर के अगेंस्ट मैंने जो केस किया हुआ है वो स्टेट है, दूसरी तरफ लेकिन फाइनेंसर मुझसे रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट किए जा रहा है, मुझे नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहा है, राइट। तो मैं उसके अगेंस्ट, अगर फाइनेंसर के अगेंस्ट कुछ मुझे रिलीफ चाहिए तो मैं जिस कोर्ट के सामने उसी से लूंगा, राइट। तो इस चीज पे खैर हम NCDRC में अपील में गए थे, okay, right, and just day before yesterday we argued the matter, thankfully bench. So what would be your advice before buying a house? Before buying a house, जैसे आपके सिचुएशन आया, इसमें इसके मतलब क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से? तो बेसिस ऑन दिस केस, हाँ, देखो अब तो क्या है, बहुत सारी, अब जैसे रेरा आ गया है, एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी अब बना दी गई है बाय लॉ, राइट। तो जितने भी नए बिल्डर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, दे हैव टू बी मैंडेटरीली
रजिस्टर्ड विद रेरा, ओके राइट। तो जब भी अगर कोई होम बायर अब कोई फ्रेश बुकिंग करना चाहे किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जितनी ये रेरा की परमिशंस हैं, राइट, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आया है नहीं आया है, वैसे रेरा के साथ रजिस्टर्ड है नहीं है, क्या टाइमलाइन रेरा के साथ इन्होंने दी हुई है, ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी चेक्ड, राइट। ऑल्सो ये भी होता है कि जो बैंक्स होते हैं, राइट, बैंक्स भी अपना एक इंडिपेंडेंट अपनी रिपोर्ट बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के क्वा, ओके या तो सीधे उस प्रोजेक्ट को लोन देने से पहले, है ना, या फिर मतलब अगर अच्छा, जो बायर भी देंगे हाँ, तो भी वो अपना असेसमेंट करवाते हैं, ओके, सो दैट इट कैन बी दे विल बी से फील करेक्ट है ना। तो आई थिंक बैंक से ये उनका असेसमेंट जान लेना इज आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट वे फॉर अ होम बायर टुडे। तो इसलिए होम लोन भी Of मुश्किल है course. अभी। ओके नाइस, ओके इंटरेस्टिंग, ओके। एंड आई ऑल्सो फील रिसेंट केस विच इज हैपन इन दी कैलकाटा। मुझे एक चीज़ हम बात कर रहे थे, ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ, ये जो रेप केसेस में ऐसे होता है, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा कोई लॉ है जिसमें कि स्ट्रिक्ट लॉ जिसमें फांसी होना होता है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है, अच्छा। ऑलरेडी है। तो वो अप्लाई क्यों नहीं होता? वाई? बिल्कुल होगा, और मुझे जैसा लगता है इस मैटर में, राइट, अब इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आता है, फिलहाल सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर, राइट, लेकिन जैसा ये पूरा केस रहा, वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट, जो भी मतलब दैट रेप एंड देन इवेंचुअली लीडिंग टू द मर्डर, राइट, और मर्डर में भी जितना ब्रूटली वो किया गया था, राइट, आई थिंक दिस केस विल डेफिनेटली कॉल फॉर अ डेथ पेनल्टी फॉर हुएवर इज फाइनली accused is the accused. Yes, अभी तो खैर सीबीआई is still investigating. Let's see how it turns out. एक मुझे ना इतने सारे बात करने के बाद मुझे एक चीज़ से जानना है कि व्हाट इज लॉ, मतलब जनरल लॉ क्या होता है? How the Bay people should see? Very interesting. So this is how I understand law to be. That see, law is nothing but those rules, maybe, right, which govern how two people would interact, okay, with each other, in simple terms, right. आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब हम किस किस सीमा में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उस सब को गवर्न करते हुए कुछ जो रूल्स हैं वो लॉ है, उसको लॉ बोलते हैं। इसी डेफिनेशन को अब आप किसी भी फील्ड में लगा दो। दो लोग ट्रेड करने लगे, तो उनके ट्रेड को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स बना दिए, वो ट्रेड लॉज हो गए। हर साल ऐसे नए रूल कितने बनता है फ्रॉम दी लॉ? हर साल कितने नए लॉज बनते हैं? नहीं, हाँ, रूल्स तो बनते ही होंगे, आई गेस। हाँ, मतलब आई थिंक ये एक्चुअली बहुत ब्रॉड क्वेश्चन हो गया, बिकॉज क्या है कि बट होता है ना, ये जरूर नहीं। यार एक्चुअली क्या होता है ना कि सी नाउ लॉज में भी अलग अलग होते हैं। एक वो लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट से एनैक्ट किए जाते हैं, राइट, जो सेंट्रल लेवल पे लॉ आया है, राइट। एक होते हैं जो स्टेट असेंबली से आते हैं, जो अपने स्टेट के लिए लॉ आते हैं। अच्छा। एक होते हैं फिर जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनके कुछ नए रूल्स आ रहे हैं उनमें, या रेगुलेशंस आ रही हैं उनमें। ओके, यू गेट माई पॉइंट। तो इसलिए ये एक बड़ा ब्रॉड सा क्वेश्चन हो जाता है कि भाई कितने नए आते हैं। इसीलिए व्हाट आई रिसेंटली हर्ड अबाउट द कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैव अप्लाइड द रूल अगेंस्ट द करेक्ट, देयर इज समथिंग न्यू दैट हैज कम अप जस्ट आफ्टर दिस केस। सो मतलब व्हाट एग्जैक्टली ऐसा क्या चेंजेस हुआ, बिकॉज़ ऑलरेडी तो लॉ है इसमें। हाँ, इसमें अभी वो क्या डिमांड कर रहे हैं, दिस आई विल आल्सो हैव टू स्टडी, बट वेरी रिसेंटली आई रेड एन अपडेट अबाउट इट कि शायद वो वहाँ के वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने, और मतलब असेंबली से अप्रूव होके इट हैज़ बीन टेबल्ड बिफोर द प्रेसिडेंट, राइट, फॉर फर्दर एक्शन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट कम्स आउट। डू यू थिंक कि रेप केसेस में फांसी भी होना चाहिए? होना चाहिए, बट अगेन सी आई थिंक, और जो अभी भी लॉ है, राइट, जो एग्जिस्टिंग लॉ है ऑलरेडी, कि एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। ओके,
राइट पॉइंट है, आई एग्री। है ना, एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं, रादर वही जो कोर्ट बैठी हुई है, जो ऑनरेबल जज बैठे हुए हैं, जिनके सामने पूरा ट्रायल चलेगा, राइट, उनको लॉ ने ये लिबर्टी दी हुई है कि जहां आपको लगे अगर, राइट, इट इज अ केस in which you need not end the person's life, you give him life imprisonment. उसे जीवन भर आप जेल के पीछे रखो, बट उसकी जान आप नहीं ली जानी चाहिए, ओके, राइट, तो वो कोर्ट कैन ऑर्डर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओके, राइट, बट वहीं पे अगर कोई ऐसा इतना ब्रूटल जो मैटर आ जाए, या जैसे जो निर्भया वाला अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट रहा हिंदुस्तान ने अपनी हिस्ट्री में विटनेस किया, राइट। अच्छा, एक और बात है, जो कुछ बेसिक रूल होता है लॉ का, ठीक है, डू यू थिंक ये स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए? आई थिंक सो, यस, ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल, कुछ पढ़ाया भी जाता है सिविक्स में, जो पढ़ाए जाते थे फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए जाते थे स्कूल में, ओके, एनसीईआरटी तो पढ़ाती थी, ओके, नहीं, बेसिक जैसे कि आई फाउंड वन थिंग, जैसे कि जो अंडर 18 है, ओके, अंडर 18 में इफ एनीवन कैन हैव अ रिलेशनशिप, okay, but can't have a sex, okay, if it's happened, that would be considered as is it, I don't know, a rape, but no, it's considered correct. So there's a separate act altogether, right, which is called the Prevention of Children from Sexual Offences Act, okay, POCSO as we call it, right. तो जैसे ही minor, yeah, you know, so under 18 it would be minor, correct, under 18 it would be minor, जैसे ही minor girl or a minor female, yeah, right, gets into physical relations, right, so that becomes punishable under POCSO. Okay, what kind of punishment will happen? Punishments are okay, are diverse range, of course, okay, imprisonment, yeah, I got it, right, and it is a very strict act. So if POCSO, तो वो अगर मेल भी माइनर होता तो उस would be नहीं, तब भी उस पे एलिगेशन आ जाता है, राइट। इम्पोर्टेंट ये है, देखा ये जाता है कि क्या लड़की माइनर थी, अच्छा, गॉट इट। अगर लड़की माइनर थी तो फिर तो इंसान मेजर हो, लड़का मेजर हो कि माइनर हो, ये इम्प्लिकेटेड इन ईदर केस। सो मेरे हिसाब से दूर रहो तो बढ़िया है। आई थिंक दैट शुड बी अवेयर अबाउट द एवरी स्टूडेंट इन द व्हेन दे आर, यू नो, नो, अगेन आई थिंक नाउ सी दोस थिंग, अब इस पे भी वही, एज आई सेड दैट सी लॉ इज डायनामिक, right, law keeps evolving as the society evolves, right, exactly, right? yeah, तो उसी के साथ अब जैसे पहले तो ये बड़ा स्ट्रिक्टली आ ही गया था कि भाई नहीं, जहाँ पे इवन इफ द बॉय इज माइनर बट ही हैड फिजिकल रिलेशंस विद द गर्ल हु इज अ माइनर, राइट, ही विल बी इम्प्लिकेटेड अंडर POCSO, he will be punished, right? But lately, courts or several high courts in fact have now started taking this view that POCSO was for the prevention of the child from any kind of abuse. It was not to prevent the child from getting into, you know, a love affair or say a consensual affair, right? So especially when the boy is also minor, it has to be taken as a separate, a distinct scenario. Okay, I got it. मतलब POCSO I think has comes with twofold purposes as regards protection of the female minor, right? Number one is, of course, nobody does anything forcefully, right? And then number two also that the intent was this, that that a major person cannot simply induce the minor female and then probably seek her consent. Okay, I got it. Right, we cannot just lure her to accordingly will be punishment will be happen, है नहीं, तो इसलिए था कि भाई वो मेजर अगर ऐसा करते हैं, राइट, तो भाई मेजर ने तो जैसे ही बनाया अगर कोई रिलेशन तो इट इज पनिशेबल, बट अब इसमें ये ऐसे बहुत मैटर्स आ रहे हैं आज के टाइम पे जहाँ वही यू नो माइनर्स आर इन अ कंसेंशुअल रिलेशन, अब उस एंड इफ इट गोस सार and when it goes sour, it again then erupts as a problem. There have been cases, so many cases, जहाँ एक केस हमने भी ऐसा देखा कुछ समय पहले जिसमें कि हो के कहीं पे वो फीमेल माइनर ऑल्सो सेड दिस कि भाई वो पेरेंट्स ने प्रेशर, थोड़ा पेरेंट्स के प्रेशर में आके फिर वो दे देती हैं लड़की स्टेटमेंट, ये चीज़। अच्छा, okay, I got it. Okay, let's come with a different point. I have other question which is I find interesting. Okay, okay. So अभी ना there is a lot of people feel pressure in corporate, okay, harassment,
सो मुझे ये जानना है, ऐसे कॉर्पोरेट में अगर किसी को हैरास किया जाता है उसके लिए लॉ क्या है? See, okay. So now we are talking about labor laws. One field of law that we talk about. Yeah. Or employment laws. Right. तो अब इसमें भी ये चीज़ होती है कि देखो हरासमेंट में भी ना बात एक हो जाती है सेक्सुअल हरासमेंट. पॉइंट नो, आई वुड से हरासमेंट लाइक जैसे कि जस्ट बॉस वैसे परेशान कर रहा है ना, या environment. कंपनी ड्यूज नहीं क्लियर हाँ, कर रही, हाँ, हाँ. या फिर इलीगली टर्मिनेट कर दिया, 2 महीने का नोटिस Right. पीरियड था, हाँ. बिल्कुल अगले ही दिन से बोल दिया कि जी आप नहीं आओगे, हाँ. है ना, विदाउट एनी नोटिस पीरियड. ऑफ कोर्स, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो एक तो हो गया सेक्सुअल हरासमेंट, उसके अपने अलग case हैं, है. विशाखा हैं, एंड देयर हैज टू बी और विशाखा के बाद भी बल्कि फिर एक एक्ट आ गया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, राइट, पॉश इट इज कॉल्ड, जिसके तहत सेक्सुअल हरासमेंट कमिटीज़ बनाई जानी होती हैं हर कंपनी में. तो ये तो खैर सेक्सुअल हरासमेंट हो गया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द अदर हरासमेंट या इलीगल टर्मिनेशन इफ वी कॉल इट, नहीं इनलीगल, ओके इसका ही बताओ, इनलीगल टर्मिनेशन है ना, तो उसके लिए ऑफ कोर्स लीगल प्रोसीजर्स हैं, ऑफ कोर्स, है ना. So what kind of procedure can be applied? Okay, so for that, when we said labor laws, right, so there's a body called the labor commissioner, there's an authority, right, who can and a person who has been illegally terminated for that matter, or even if not illegally terminated, any kind of grievance he has with the company regarding his employment, right, he can approach the labor commissioner, file his complaint, right, the labor, so and the entire process is so conducive that at first the labor commissioner will try if both parties can just settle their dispute. Okay. If there is evidence to be led in the matter, then comes the second step of going to the labor court. Labor court. Okay. So the first step of labor commissioner is primarily if their matter can be just solved outside the court. I got it. So law has its own avenues. There are a lot of options. नहीं, अगर जैसे बॉस और एम्प्लॉय के बीच में होता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको क्या पनिश हो सकता है? नहीं, अब अगर एम्प्लॉय सपोज को एक टारगेट दिया गया है ना, और एम्प्लॉय वो टारगेट नहीं फुलफिल करता, जिस वजह से बॉस उस पर चिल्ला देता है, ठीक है, तो अब यार इसमें आप टू डिफरेंट थिंग. एक चिल्ला देना, एक हरासमेंट होता है, दिस इज सेम लाइक हरास. हाँ, ओके, एंड वो मैं उस केस की बात कर रहा हूँ. अच्छा, आप कह रहे हो कि जहाँ पे फिर वो सिस्टमैटिकली हरास करने लगता है कुछ. मतलब हाँ, ऐसा है कि मैं बॉस हूँ और मेरे बच्चों को मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ. ओके, सो देयर इज एज पर दी कंपनी पॉलिसी नथिंग, बिकॉज आई एम द बॉस, ओके, आई एम डूइंग दिस. और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे केस होती है, okay, तो जो रिपोर्ट नहीं होता है. हाँ, इवन इन दैट केस, सी अगेन इट इज रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयमेंट, राइट, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच द लेबर कमिश्नर और द लेबर कोर्ट. ओके, सो उसके साथ क्या हो सकता है? कंपनसेशन. देखो, वो आपका कुछ क्रिमिनली रॉन्ग करे, कोई ऑफेंस आपके साथ कमिट करे, राइट, कोई किसी ने हाथ उठा दिया या किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ कोई बदतमीजी कर दी बॉस ने, ऑल ऑफ दिस देन कन्वर्ट्स इनटू एन ऑफेंस. इट्स अ क्रिमिनल कॉज ऑफ एक्शन. ओके, बट उसके अलावा है ना, बॉस ने वो सिस्टमैटिकली थोड़ा अपना मेंटल हरासमेंट करना शुरू कर दिया, वो क्रिमिनल केस हो सकता है. क्रिमिनल केस जो मैंने आपको सर्कमस्टांस बताया उसमें, किसी ने आपको, बॉस ने थप्पड़ मार दिया सपोज एम्प्लॉय को, गुस्से में, गाली गलौज कर दिया, तो है ना, गाली गलौज कर दिया तो भी आ जाएगा क्रिमिनल में, तो भी क्रिमिनल में आ जाएगा. अच्छा, पीनल कोड में ऐसी धाराएं हैं. अच्छा, इंटेंशनल इंसल्ट वाली, ठीक है, या धमकाने वाली, इसका एक रील बनेगा फिर, राइट. ओके, गो अहेड. ये धाराएं हैं पीनल कोड में. तो ऑफ कोर्स, बट अगर मतलब वो भी तब है अगर वो सब हम, फिर ये भी होता है कि ऐसा किसी के साथ हो तो सबसे पहले तो अपना एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दो. बिल्कुल. अब वीडियो बना लो या आप रिकॉर्ड कर लो. बेस्ट तो होता है वीडियो बना लो. अच्छा, जिसमें इंसान की आवाज़ भी सुनाई देगी, फेस भी दिखेगा. इंटरेस्टिंग. वो वीडियो ना बन सकती हो, आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, एंड देन वी कैन टेक दैट टू द कोर्ट. ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है, फिर भी ये होता है बहुत सारे तो जो लोग कॉर्पोरेट में, उनके लिए ये खुशखबरी है कि आप लोग एक्शन ले सकते हो. ऑफ कोर्स. ओके, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर एविडेंस. You need to have proper evidence. Got it. Okay, interesting.
नाइस। ये लोग फिर भी इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं अब उन्हीं के मेरी against जॉब भी जा है ना, सकता है। जॉब भी जा सकती है, और प्राइवेट हाँ। कंपनीज में ऐसा होता है काफी। तो बट आई रिमेम्बर डूइंग अ केस सम टाइम बैक, इट वाज अ गर्ल। ऐसे केस आए आपके पास? हाँ, इट वाज अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, हर फैमिली इज इन दिल्ली, शी वाज वर्किंग इन बैंगलोर, ओके। राइट, और वो एक कंपनी के साथ थी। आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, राइट, बट उनकी अपने जो बॉस कोई थी, बॉस भी लेडी थी, उनके साथ कुछ वो ईगो क्लैश हो गया होगा, इनका भी अपना कुछ एटीट्यूड, उनका भी अपना अलग एटीट्यूड, तो कुछ ईगो क्लैश हुआ होगा, उस वजह से फिलहाल बॉस ने कर करा के और पहले तो इन्हें बोला कि आप इंडेफिनिट लीव पे चले जाओ, और उसके बस 2 दिन के अंदर ही कि भाई आपकी सर्विसेज टर्मिनेट की जाती हैं, और आप जो आपके पास कंपनी प्रॉपर्टी है आप उसको हैंड ओवर करिए, और उसकी जो उससे पहले प्रीवियस मंथ की सैलरी थी वो भी विद होल्ड कर ली, कुछ शायद 90 डेज का, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, नोटिस पीरियड था, तो उसके भी अगेंस्ट में कुछ नहीं दिया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल एब्रप्ट। ओके, तो उसको फिर वो क्लेम कर पाए? हाँ, फिर थैंकफुली उसे हम क्लेम कर पाए, और उसमें भी तो क्या होता है ना, एक ये भी मेरा ज़रूर सजेशन होगा सभी लोगों को कि जब भी आपको लग रहा हो कि कोई लीगल डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, राइट, आप उसी समय लीगल एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करो। अच्छा, उसी समय इन्वॉल्व करो। ओके। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे उस केस में क्या था, जैसे ही उसको लगा कि उसकी बॉस से कुछ ऐसा चल रहा है एंड विच माइट लीड टू हर इलीगल टर्मिनेशन, उसी समय उसने हमें कांटेक्ट कर लिया। तो उससे क्या हुआ, फिर हम थोड़ा सा उसे गाइड कर पाए कि आगे कैसे कैसे अगर कोई इंटरेक्शन होता है, कैसे थोड़ा एविडेंस अपने फेवर में कलेक्ट करके रखा जाए, राइट, कि हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है, और उसको फिर एक्चुअली रिक्वायरमेंट पड़ने पे ताकि हम यूज़ कर सकें। इंटरेस्टिंग। अदरवाइज क्या होता है, जनरली अगर आपके पास लीगल वो सपोर्ट ना मिल रहा हो, वो लीगल एडवाइस आपको नहीं मिल रही हो, तो कई बार उस सिचुएशन में जिस पे डिस्प्यूट आगे अराइज होना होता है, तब तक आप उसको अपने फेवर में थोड़ा कम बिल्ड कर पाते हो। समझ गया, आई गॉट इट। सो व्हेन यू कम टू द मतलब किसी एडवोकेट के पास जाते हो तो ये दे विल एडवाइस so that आप अपनी केस पे स्ट्रॉन्ग होगा। दैट ऑफ कोर्स, मतलब सो एज यू टॉक्ड अबाउट मैट्रिमोनियल केसेस, राइट, तो उसमें ये होता है कि एक तरफ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास जो अप्रोच करते हैं कि जब झगड़ा हो गया पूरा, राइट, वो बीवी अपने घर चली गई, ये यहाँ पे हैं, और सपोज बीवी ने भी कोई केस वेस इन पे कर दिया, उसके बाद वो हमारे पास आए। अब हम इनसे पूछते हैं कि चलो जी, अब और इनका अपना जो भी पक्ष है कि भाई नहीं उसमें कोई भाई बहुत गुस्सा था या बहुत लड़ाइयाँ होती थी, जो भी इनका पक्ष है, लेकिन उसके लिए हमने इनसे पूछा कि भाई तो आपके पास एविडेंस है, कोई रिकॉर्डिंग है? वो इनके पास कुछ नहीं हाथ में। पॉइंट, आई गॉट इट। अब सोचो यही इंसान यदि जब इसे पहले लग रहा था, तो मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास आता है, देन यू से थोड़ा टाइम और वेट कर लो एंड क्रिएट समथिंग। डिपेंड्स नो कि वो किस स्टेज पे आया है, डिपेंड्स कि वो किस स्टेज पे आया है, राइट। कोई अगर हमारे, और उसी के उलट हाँ, जो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो पहले ही थोड़ा एडवाइस ले लेते हैं और जो कहते हैं कि यार ऐसे कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, राइट, अब ये आगे यू नेवर नो वेयर इट लीड्स, तो वहाँ पे एटलीस्ट हम उससे ये बता पाते हैं क्लाइंट को कि देखो पहली प्रायोरिटी तो यही रखी जाए कि यार घर बना रहे, है ना, फैमिली कैन सस्टेन, बट फिर भी अगर लगे कि नहीं बिल्कुल कंट्रोल से बाहर ही जा रहा है, तो डू इंश्योर कि आपके साथ जो जो गलत हो रहा है आप उसके एविडेंसेस कम से कम अपने हाथ में प्रिजर्व कर सको। इंटरेस्टिंग, राइट। इसलिए टाइमली लीगल एक्सपर्ट को इंडल्ज कर लेना ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो आप किस टाइप ऑफ केसेस हैंडल करते हो? मैंने आपको बताया, पहले बताया ना, वेरी इंटरेस्टिंगली आई मेंशन दिस, मैं इसलिए I'll mention this as well कि कुछ समय पहले तो जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर चंद्रचूड़, ओके, राइट, उन्होंने एक, एंड दिस वाज आल्सो, दिस गॉट वेरी फेमस इन हिज दिस स्टेटमेंट गॉट वेरी फेमस इन मीडिया, कि उन्होंने कहा कि जो क्लाइंट और काउंसिल का रिलेशन होता है, इट इज अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, एज वी ऑल नो, right? Now fiduciary relationship is a relationship based on trust, right? So what he said was कि भाई अब जब आपका एक क्लाइंट है फिक्स, अब सपोज मेरा एक क्लाइंट है फिक्स्ड, वो मुझ पे विश्वास करता है, उसे पता है कि भाई ये मेरे लीगल मैटर सारे हैंडल कर लेगा, अब उसका फिर लीगल पछड़ा क्रिमिनल आए,
उसका सिविल आए, उसका कंज्यूमर का आए, उसका मैट्रिमोनियल आए, वो फ़ोन मुझे ही करेगा. ठीक है. राइट. सो दिस इज व्हाट द चीफ जस्टिस सेड कि भाई आपका जो क्लाइंट है वो आप पे विश्वास करता है, उसका जो भी पछड़ा होगा वो आपको कॉल करेगा. बिल्कुल. राइट. हेंस एडवोकेट्स नीड टू बी ऑलराउंडर्स ना. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिविल और मैं या सिर्फ क्रिमिनल और मैं क्लाइंट को मना कर दूं कि नहीं जी तुम्हारा मैट्रिमोनियल है वो तो मैं नहीं देखता, वो उधर है ना, या कंज्यूमर है मैं उधर नहीं देखता. ये हो रहा है अभी धीरे धीरे दिल्ली में तो. हाँ मतलब अगेन नॉट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, राइट, बट दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं. देयर वी हैव सो मेनी यू नो सीनियर्स फ्रॉम द फील्ड जो एक फील्ड में ही प्रैक्टिस करते हैं, राइट, और उसके वो एक्सपर्ट हैं. राइट. तो मतलब ऑफ कोर्स देयर आर बोथ वे. और उसी के अगेंस्ट में ऐसे हमारे कितने सीनियर्स हैं, राइट, जो कि मल्टीपल जो सिविल लिटिगेशन भी करते हैं, जो कंपनी लिटिगेशन भी करते हैं, कंज्यूमर भी करते हैं, क्रिमिनल भी करते हैं. राइट. तो दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों फील्ड्स होती हैं. आई थिंक व्हिचएवर सूट्स द इंडिविजुअल. या आई गॉट इट. अब तक मेरा एक्सपीरियंस वो लैटर का रहा है, एक्सपीरियंसिंग मल्टीपल. कोई ऐसा केस और आपने फेस किया जो कि मुझे ना जनरली मैं जब भी मूवी देखता हूँ ना, स्पेशली जैसे LLB टाइप ऑफ मूवी, मुझे बहुत मजा आता है उस पर्टिकुलर टाइम में, बिकॉज एवरीथिंग कम टुगेदर. ओके. सो आई लव टू हियर समथिंग लाइक, अगर आपके पास है कि कुछ ऐसा केस है जो आपको लगा कि बहुत सस्पेंशियल था एंड फाइनली वी रीच इन द मतलब जिसमें जस्टिस हुआ. है ऑफ कोर्स. आपने ये पूछा था. Is it if it's funny that also good. I am reminded. No, it's not exactly funny. It was कि द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ पे एक मैटर था, और उसमें क्या था कि सो कंसिडर दिस अ कपल, दिस अ यंग कपल. ठीक है. वो उनके शायद पेरेंट्स वगैरह थे नहीं, तो वो मैरिड और अनमैरिड? मैरिड ऑफ कोर्स, है ना, मैरिड, वेरी रिसेंटली मैरिड, ऐसे करके, है ना. तो एंड रियली यंग. तो वो अपनी बुआ जी के साथ एक बड़े छोटे से घर में रहते थे. ठीक है. काफ़ी सालों से रहते. ठीक है. ठीक है. तो वो बुआ जी के का ही घर था पहले. अब बुआ जी ने जब वो इतने समय से वहाँ सब रह रहे थे साथ में, तो 3-4 साल बाद वो लड़के को बेच दिया. अच्छा. बुआ जी ने, राइट. 2-3 साल वो लोग और वहाँ पे साथ में रहे. फिर बुआ जी कहीं और जाके किसी और बच्चे के पास रहने लगी. उसमें थोड़ा और समय बीता, तो फिर बुआ जी के मन में लालच आया या जो भी हुआ, उन्होंने वही घर जो वो पहले उसको बेच दिया था, अब वो उन्होंने एक तीसरी पार्टी को बेच दिया. ठीक है. राइट. अब तीसरी पार्टी को बेचा और उन्होंने थोड़ा सा आपस में कल्यूजन करके उस तीसरी पार्टी ने बुआ जी पे केस फाइल कर दिया कि जी इन्होंने मुझे ये घर बेचा है और ये मेरे नाम पे रजिस्ट्री कराएं. ठीक है. राइट. कोर्ट में उनको बुआ जी को लेके चला गया. कोर्ट में बुआ जी ने भी बोल दिया हाँ जी मैंने बेचा है, मैं रजिस्ट्री कराने को राजी हूँ. तो एक कंसेंसस के बेसिस पे कोर्ट ने एक डिक्री भी पास कर दी कि हाँ जी ये बुआ जी उसके नाम पे रजिस्ट्री कराएंगी, बुआ जी ने ये घर बेचा है. राइट. उसके बाद एक चीज़ होती है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, कि जो कोर्ट की डिक्री आ गई अब उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा. राइट. उसके लिए दोबारा से कोर्ट में आते हैं. तो अब जब वो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चल रही थी, उस समय पहली बार इस यंग कपल को पता चला कि जी कि पहली बार पता लगा कि तब उन्हें पता चला पहली बार कि जी ऐसे ऐसे बुआ जी ने किसी और को वो घर बेच दिया है, और साथ में वो दोनों मिलके कल्यूजन में डिक्री भी ले आए हैं कोर्ट से, कोर्ट का ऑर्डर भी ले आए हैं. ठीक है. राइट. तो तब वो पहली बार वो हमारे पास आए, हमने उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को ज्वाइन किया, वहाँ पे हम गए. तो अब क्या था उसमें एक हमारे एक मेरे साथी थे, हम लोग पहले साथ में प्रैक्टिस करते थे, तो वो जा रहे थे उसमें काफ़ी टाइम से, और एक जज थे उसमें, काफ़ी स्ट्रिक्ट जज थे. राइट. अब उसमें और कुछ वो टेक्निकल बात ये थी लॉ की कि इस कपल के पास जो प्रॉपर्टी के कागजात थे वो फोटोकॉपी थे. अच्छा. ओरिजिनल थे नहीं, क्योंकि हमने पूछा इससे ओरिजिनल कहाँ है, तो उसने बोला जी बुआ जी बड़ी थी घर की तो उन्हीं के पास रखवा रखे थे. हमने भी कभी ऐसे नहीं सोचा था कि बुआ जी गई तो अब पता नहीं कहाँ, या तो कहीं और रख गई या अपने साथ ले गई, हमारे पास है नहीं, तो इनके पास से फोटोकॉपी थी. राइट. अब वो क्या था कि वो कोर्ट उन फोटोकॉपी के बेसिस पे इनकी राइट को नहीं मान रही थी इनिशियल डेज में, जब हमारे वो नहीं मान रहे थे. नहीं मान रहे थे. तो वो कई डेटों पे 3-4 डेट्स उसमें निकली,
और उसमें हमारे वो साथी उसे परस्यू कर रहे थे मैटर पे, हर डेट पे वो जाते थे। तो जब भी उनके आने के बाद जब हमारा डिस्कशन होता था तो यही बात थी कि भाई ये प्रॉपर्टी इनके हाथ से गई ही गई, ओके है ना, क्योंकि कोर्ट भी मानने को राज़ी है नहीं इस बात पे। तो और बिल्कुल वो मतलब वो यंग कपल कहाँ रहते थे इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो कहाँ की प्रॉपर्टी थी, बट लेकिन लड़के का ये कहना था कि सर मुझे अगर ये घर भी मेरे हाथ से चला गया तो मुझे पता नहीं मैं अपनी वाइफ को लेके कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। ही सेड कि मेरा हमारा तो बस यही एक जगह है और कुछ है ही नहीं हमारा, और थोड़े मतलब गरीब थे वो काफ़ी। तो फिर एक दिन इत्तफाकन ऐसा हुआ, दिस ऑल्सो इनफैक्ट दिस केस इनफैक्ट ऑल्सो यू नो मेड माई बिलीफ इन द ऑलमाइटी हायर, राइट, बिकॉज तो अब क्या हुआ, वो 4 5 6 डेट से वो साथी जा रहे थे, ये बात क्लियर थी कि जी घर गया ही गया। अब एक पर्टिकुलर डेट पे क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे तो हुआ कि मैं खुद चला जाता हूँ। अब मैं वहाँ पहुँचा और उस दिन हमारा डिस्कशन जाने से पहले मेरे बस ये हुआ था कि यार घर तो जाना ही है, कोशिश की जाए कि आज ना जाए, राइट, है ना, थोड़ा सा और समय हम निकाल लें, यू नेवर नो कुछ और माइंड में आ जाए। ये करके हम गए वहाँ पे मैटर में। इत्तफाकन उस दिन वो जज साहब उस कोर्ट के ट्रांसफ़र हो गए थे, एक नई जज मैडम आ गई थी, राइट। तो और वो दोनों यंग कपल भी आया हुआ था और वो बहुत उनकी हालत ख़राब, क्योंकि उनको भी पता ही था कि भाई है ना घर जाने ही वाला है, तो बड़े मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता उनके जैसा होता। तो फिर वो मैटर हमारा कॉल हुआ, हमने फिर जज को पूरी बात समझाई, हमने पूरा बताया कि जी ऐसे ऐसे हुआ है, कल्यूजन में इन्होंने डिक्री लेके और आ गए हैं हमारे अगेंस्ट में यहाँ पे, और हमें तो उसमें पार्टी भी नहीं बनाया, यहाँ पहली बार पार्टी बनाया था। तो उसमें जज ने भी को भी मतलब ये बात वो क्लिक की, और साथ में उसमें एक ऐसी टेक्निकलिटी जज ने निकाली जो बात सही थी, जो पहले नहीं किसी ने मेंशन की थी। लेकिन जज ने कहा जी कि ये तो डिक्री एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती। ओके, फिर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती मतलब वो तो पार्टी फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, सेकंड वाला नहीं, जो डिक्री थी मतलब जो कोर्ट ने आदेश दिया था जिसके एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ आए थे, इस कोर्ट ने कहा जी वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, राइट। और फिर और जो बातें हुई, बट उसका कंक्लूजन ये निकला कि भाई जो जिस डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए आए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, राइट। और उस दिन उस कपल का घर बच गया। इंटरेस्टिंग। जो उससे पहले इतनी डेटों से एक ही यही धक उनके भी दिल में थी, हमारे भी मन में थोड़ी सी थी कि भाई उनका घर गया ही गया, राइट। और इत्तफाकन ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसा हुआ उस दिन कि उस दिन उनका घर बच गया। और वो जो था सेकंड वाला जो ओनर था, उसको कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो अब बुआ जी और ये देखेंगे, ये बुआ जी पैसे वापस करें, ये दोनों देखेंगे कैसे ये टैकल करें। कोर्ट ने कहा जी कल्यूजन के बेसिस पे तो आप लाल किले की डिग्री ले आओगे, ये क्या बात हुई। Got it. तो खैर दैट वाज वही जो आपने कहा ना, जो पहले बनता हुआ कुछ आ रहा था कि लगा गया गया गया, और वो अचानक से एक डेट पे बिल्कुल ही पलट गया। Okay, what would be you gonna say to the Gen Zs? I would use the words that to the generation that is now coming up. Yeah, that Right. one. I think especially are you talking about the legal field specific? Yeah, general. In general ही बता सकते हैं। Legal we already talk about. I just want to mention something. भाई in general तो देखो जो बड़ों से हमने सीखा है, जो बड़े कह के गए हैं कि भाई मेहनत शिद्दत से करनी चाहिए इंसान को, है ना, ज़रूर मेहनत करने में स्मार्टनेस भी रखनी चाहिए, राइट। अगर थोड़ा लंबा ग्रो करना है, बड़ा ग्रो करना है सोसाइटी में, तो राइट। That's it. And I personally, so okay, let me tell you this. So this phrase was very dear to me at some time, which was that intent good, heart pure, right? So I don't have any malice in my heart, right? And faith high. Interesting. So if I say that again, intent good, heart pure, faith high. Okay. And I think
जितने भी मैटर्स से मैंने डील किया, इन तीनों चीज़ों को रखते हुए, फॉलो करते हुए, they have always been good. So that should be follow by everyone. I think so. मतलब इसको थोड़ा सा हम बाइफिकेट अगर करने जाएं, थोड़ा इन डेप्थ समझने जाएं, राइट, तो इंटेंट गुड would mean that whatever you're planning to do, okay, right, yeah, you have a good intent out of that. जो आप आउटकम निकालना चाहते हो, that is a good intent, right. उसके बाद आ जाती है हार्ट प्योर would mean that how you want to do it is also the correct way, not by cheating someone or also the correct way, right. I got it. And then comes faith high, when we are doing all of this, right, and then we have the faith high that the Almighty is there, He'll take care of us. Yeah, interesting. I like that. So I think this I would want to definitely. Okay, yeah, I got it. Just one last thing I would say there. Recently in some matter, and I've been telling this to all my near and dear ones, and I think the general public should be aware about. Okay. Right, which is this, that whenever from your bank account an illegal transaction happens and some money is siphoned off, right, and you inform to your concerned bank within 3 days, okay, right, of receipt of intimation of such transaction, it is the responsibility of the bank to refund the entire defrauded amount to you. They will do that? They will do that. Right? Okay. Only exception is, of course, if there is no negligence. No, like OTP शेयर नहीं किया. Correct. And all, okay. But जैसे मतलब हमारे जो इस केस में हमने देखा कि उसमें जो हमारे क्लाइंट हैं वो पेरिस विजिट पे गए थे, वहाँ उनका वॉलेट चोरी हो गया. उसमें एक क्रेडिट कार्ड था, वो क्रेडिट कार्ड से वो ब्लॉक करना उन्होंने शुरू किया. उस पर्टिकुलर को कर पाते, इससे पहले उनके पास मैसेज आ गया कुछ 1.5 लाख करीब के 2 ट्रांजैक्शन में पैसे जाने का. उन्होंने और चेक किया तो पता लगा वो POS मशीन से हुआ था, बिना किसी पिन वगैरह के शेयर हुए. So ये कार्ड में तो ऐसा होता है ना, बिना पिन का भी मतलब नहीं कुछ अलाउ करते हैं, ऐसा भी होता है. हाँ, वैसे तो पिन एक्टिवेट करवाया जाता है, उन्होंने भी करवा रखा था, फिर भी वो सरप्राइज कि बिना पिन के कैसे हो गया, राइट. तो उन्होंने अपने कंसर्न बैंक को लिखा और वही RBI का सर्कुलर साइट करते हुए लिखा कि अब पूरा पैसा मेरा रिफंड करिए. कंसर्न बैंक ने मना कर दिया. उन्होंने RBI ओम्बड्समैन को लिखा. ओम्बड्समैन ने कुछ ये कह के कि भाई क्योंकि ये इंडिया से बाहर हुआ है ट्रांजैक्शन, इसलिए हमारे परव्यू में फॉल नहीं करेगा, इसलिए ओम्बड्समैन ने इंटरवीन करने से मना कर दिया. Okay. Right. So hence we had to move to the Delhi High Court with a writ. So which is still pending. But इसमें फिर जब मैंने रिसर्च की इस केस पे, और तो very interestingly I could find judgments of several high courts. एंड टू द एक्सटेंट एक हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऐसे भी इसको इंटरप्रेट किया हुआ है, ये कहते हुए कि भाई कोई भी आम इंसान अपना पैसा जो बैंक में रखवाता है वो इसलिए रखवाता है ताकि पैसा सेफली रखा जा सके. एग्जैक्टली, राइट. तो अब अगर किसी भी तरीके से किसी और इंसान ने इलीगली वो पैसा उसमें से निकाल लिया है, तो ये माना जाएगा दैट द बैंक हैज फेल्ड इन इट्स ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स Interesting. To safeguard the interest of the client. Got it. इसलिए वो liability बैंक के सिर पे आएगी. Right. Yeah. So I think all of us should be aware about this कि कभी, और क्योंकि आज के टाइम पे इतने ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसी कॉल्स आती हैं और so many online frauds that are happening. तो आई थिंक जनरल पब्लिक को ये पता होना चाहिए, कभी अगर किसी का ऐसे इलीगली ट्रांजैक्शन से कुछ पैसे निकल जाएं, राइट, आपकी नेग्लिजेंस नहीं हो, तो आप बैंक को आप क्लेम करो, बैंक आपको वो रिफंड करेगा. बैंक यदि आपको रिफंड नहीं करता है, यू कैन गो टू द RBI ombudsman, you can come to the court. There are so all of us should be aware about this. I got it. Okay, all right. We had a lot of talk, I guess. Yeah. Okay, thank you so much. Very nice one. Good. Yeah, I hope you enjoy the show. Absolutely. Okay. थैंक यू सो मच पूरी एपिसोड देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ताकि आने वाले एपिसोड आप देख पाओ. ओके, और साथ में इसमें और भी शॉर्ट्स आएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए. जो इंटरेस्टिंग पार्ट है हम उसको शॉर्ट में रिलीज करते हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.